تلنگانہ میں آئندہ 3 دنوں کے دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں بتدریج 2 سے 3 ڈگری سیلسیس تک اضافہ ہونے کے امکانات ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مرکز نے جاری اپنی روزانہ موسمی رپورٹ میں کہا ہے کہ اگلے 7 دنوں تک ریاست میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تلنگانہ کے 1 یا 2 مقامات پر بارش ریکارڈ کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق اسی مدت میں محبوب نگر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ فاطمہ شیراز لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن، قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹمیچور، جو بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ ایفیکٹس، صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ Entering Secfestcon into the beginning of your wonderful journey to reach your dreams. We invite you to experience education in a faith Islamic environment. Come, study at a campus dedicated exclusively to those at Malakpet and Tolichopi. With NEET and IIT, JEE mains, integrated coaching, equipped with smart classrooms to meet the aspirations of today's tech-savvy students, it also boasts of state-of-the-art fine flats and high-tech computer labs. حیدرآباد میں کمشنر ٹاسک فورس خیرتآباد زون اور نامپلی پولیس کی مشترکہ کارروائی میں غیر قانونی ای سگریٹ ویپس فروخت کرنے والے ایک بڑے ریکٹ کا پردہ فاش کیا گیا۔ اس کارروائی میں 3 ملزمان کو گرفتار کر کے 999 ممنوعہ الیکٹرانک سگریٹس ضبط کی گئی، جن کی مالیت تقریباً 34 لاکھ روپے بتائی جا رہی۔ تفصیلات کے مطابق پولیس نے خفیہ اطلاع پر بازار گھاٹ نامپلی کے اے بیٹری لائن علاقے میں چھاپہ مار کارروائی کی، جہاں محمد احمد کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ ایک 2 ویلر گاڑی پر 180 ممنوعہ ای سگریٹ سپلائی کرنے جا رہا تھا۔ اس دوران محمد اسد رضا عرف ارحان کو بھی حراست میں لیا گیا، جو ان سامان کا وصول کنندہ تھا اور ونیت منتری کی ہدایت پر کام کر رہا تھا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے کانگریس کے سینئر لیڈر پون کھیڑا کو ایک بڑی راحت دیتے ہوئے انہیں آسام میں درج مقدمے میں 1 ہفتے کی عبوری پیشگی ضمانت دی ہے۔ سماعت کے دوران جسٹس سوجنا نے کہا کہ درخواست گزار کو متعلقہ عدالت میں اپیل دائر کرنے کے لیے 1 ہفتے کا وقت دیا جاتا ہے اور اس وقت تک اسے گرفتاری سے عبوری تحفظ حاصل ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پون کھیڑا نے 7 اپریل کو ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، جس میں ان کی گرفتاری کی صورت میں راحت مانگی گئی تھی۔ یہ تنازعہ اس وقت شروع ہوا جب 5 اپریل کو پون کھیڑا نے الزام لگایا کہ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما کی اہلیہ رنکی بھویان سرما کے پاس متعدد پاسپورٹ اور غیر ملکی اثاثے ہیں۔ حیدرآباد پولیس نے منگل ہاٹ پولیس اسٹیشن حدود میں بڑے پیمانے پر کارڈن اینڈ سرچ آپریشن کے دوران 111 سلنڈر ضبط کر لیے۔ تفصیلات کے مطابق یہ آپریشن صبح 5 بجے شروع کیا گیا، جس میں تقریباً 200 پولیس اہلکاروں نے حصہ لیا۔ سرچ آپریشن کے دوران مختلف علاقوں کی تلاشی لی گئی اور مشتبہ سرگرمیوں پر نظر رکھی گئی۔ پولیس کے مطابق ضبط کیے گئے سلنڈرز میں 10 گھریلو گیس سلنڈر، 7 کمرشل سلنڈر اور 94 چھوٹے سلنڈرز شامل۔ مزید بتایا گیا کہ 15 چھوٹے سلنڈرز، 3 آٹو رکشاؤں اور 28 2 ویلر گاڑی سواروں سے ضبط کیے گئے، کیونکہ وہ انہیں لے جانے کی کوئی معقول وجہ پیش نہیں کر سکے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اس طرح کے آپریشنز کا مقصد غیر قانونی سرگرمیوں پر قابو پانا اور شہر میں امن و امان کو برقرار رکھنا۔ مزید تحقیقات جاری ہے۔ حیدرآباد کے علاقے امین پور کے لاپور تانڈا میں سرکاری اراضی پر بڑے پیمانے پر قبضوں کا انکشاف ہوا ہے۔ گوگل میپس کی 2010 سے 2025 تک کی تصاویر میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح وقت کے ساتھ ساتھ سینکڑوں ایکڑ زمین پر غیر قانونی قبضے بڑھتے گئے۔ ذرائع کے مطابق مکیم گینگ نے ہائی کورٹ کے اسٹیٹس کو احکامات کے باوجود مبینہ طور پر سرکاری زمین کو غریب قبائلی افراد کو فروخت کیا۔ یہ پلاٹس تقریباً 100 مربع گز کے حساب سے بیچے گئے، جس سے نہ صرف سرکاری اراضی کو نقصان پہنچا بلکہ معصوم اور غریب لوگوں کو بھی دھوکہ دیا گیا۔ نقشوں میں نمایاں کیے گئے علاقوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قبضے مرحلہ وار بڑھتے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک وسیع رقبے غیر قانونی تعمیرات کے زد میں آ گیا۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ اس پورے معاملے میں بااثر افراد کی پشت پناہی بھی شامل ہو سکتی ہے، جبکہ حکام کی خاموشی نے اس مسئلے کو مزید سنگین بنا دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے برسوں تک جاری رہنے والے ان غیر قانونی قبضوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی اور کیا متاثرہ قبائلی خاندانوں کو انصاف مل سکے گا؟ حکام کی جانب سے تاحال کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا، تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ جلد ہی اس معاملے میں سخت کارروائی متوقع ہے۔
तेलंगाना में आंगनवाड़ी वर्कर्स को दिए गए मोबाइल फोन्स की खरीदारी पर तनाज़ा खड़ा हो गया। वजीर सीतका के एक बयान के बाद इस मामले ने सियासी रंग इख्तियार कर लिया है। वजीर सीतका का कहना है कि हुकूमत ने हर फोन 11,650 रुपए में खरीदा और आंगनवाड़ी वर्कर्स में तकसीम किया। ताहम जराये के मुताबिक वही सैमसंग A06 मोबाइल फोन अगर बड़ी तादाद में खरीदा जाए तो इसकी कीमत तकरीबन 6,000 रुपए तक हो सकती है। इस इंकशाफ के बाद अपोजिशन जमातों ने हुकूमत पर सवालात उठाते हुए इल्जाम लगाया कि खरीदारी में बेज़ाब्तगियां हो सकती हैं और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया है। दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से ताहाल इस फर्क कीमत पर कोई वाज़ेह वजाहत सामने नहीं आई। अवामी हलकों में भी इस मामले पर तशवीश पाई जा रही और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा। ये मामला अब रियासती सियासत में एक अहम मौजू बनता जा रहा, जिस पर आने वाले दिनों में मजीद रद्दमल मुतवक्किल है। तेलंगाना की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। बीआरएस के सीनियर लीडर केटीआर ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद की। केटीआर ने अपने बयान में कहा है कि जब रेवंत रेड्डी इख्तिदार से हट जाएंगे तो उन्हें देखकर कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि रेवंत रेड्डी की पॉलिसियों और इक़दामात से अवाम में शदीद नाराजगी पाई जा रही। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम जल्द ही रेवंत रेड्डी को उनके मुबैना गलत फैसलों और इक़दामात का मुनासिब जवाब देंगे। दूसरी जानिब कांग्रेस की जानिब से इस बयान पर रद्दमल सामने आने का इम्कान, जबकि सियासी मुबसरीन के मुताबिक रियासत में आइंदा दिनों में सियासी बयानबाजी और भी तेज हो सकती है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब तेलंगाना में सियासी माहौल पहले ही गर्म है और मुख्तलिफ जमातें एक दूसरे पर इल्जामात आयद कर रही। మొన్న నేను మా సబితక్క విద్యార్థుల మీటింగ్కి పోయినాం తెలంగాణ భవన్లో. పోతే ఒక విద్యార్థి సోదరుడు మాట్లాడుతూ అన్నాడు, అన్నా చాలా మంది నాయకులు వస్తారు పోతారు, ఇన్నటిదాకా ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన ఒక నాయకుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో तेलंगाना में इंसदाद नक्सल ऑपरेशंस के तहत एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई, जहां 42 CPI माओविस्ट केडर्स ने हथियार डालकर कौमी धारे में शमूलियत इख्तियार की। तफसीलात के मुताबिक ये तमाम माओविस्ट अरकान तेलंगाना पुलिस के सामने हैदराबाद में पेश हुए और अपने साथ 36 मुख्तलिफ किस्म के असला भी हवाले किए। जब्त शुदा हथियारों में AK-47, SLR और इंसास राइफल समेत दीगर मोहलिक हथियार शामिल, जबकि तकरीबन 1007 जिंदा कारतूस और 800 ग्राम सोना भी बरामद। हुकाम के मुताबिक हथियार डालने वालों में कई अहम रहनुमा भी शामिल, जिनमें सूदे मिल्ला उर्फ केशल उर्फ निखिल, PLGA बटालियन कमांडर छाया नारायणा उर्फ गजेंद्र उर्फ मधु और कदती सानू उर्फ मंथो जैसे नाम शामिल। पुलिस का कहना है कि इससे कबल भी सीनियर माओविस्ट क़यादत समेत 130 केडर्स हथियार डाल चुके हैं, जिनसे 124 हथियार बरामद हुए थे। अब मजीद 42 अरकान के सरेंडर के बाद माओविस्ट तंजीम को बड़ा धचका पहुंचा। आला हुकाम ने दावा किया है कि माओविस्ट तंजीम का सबसे अहम अस्करी विंग पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी इन सरेंडर के बाद मुकम्मल तौर पर गैर मुयस्सर हो चुका है। उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट की मुकम्मल नजरसानी के बाद हतमी वोटर लिस्ट जारी कर दी गई। हतमी फहरिस्त में 13,39,84,792 वोटरों की तादाद हो गई। इस हतमी फहरिस्त की इशाअत के साथ ही रियासत की सियासत में भी घमासान शुरू हो गया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के रहनुमा और राज्यसभा के रुकन संजय सिंह ने सख्त रद्दमल जाहिर किया। आम आदमी पार्टी लीडर ने कहा कि ड्राफ्ट लिस्ट भी उत्तर प्रदेश के मुलाजमीन ने तैयार की और असम्बली के लिए जो फहरिस्त बनी वो भी उत्तर प्रदेश के मुलाजमीन में तैयार की। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि दोनों फहरिस्तों में इतना फर्क है, कहां से आ गया। संजय सिंह ने कहा कि बल्दियाती इदारों और ग्राम पंचायत के मिलाकर अगर 17 करोड़ वोट पंचायत की फहरिस्त में हैं, तो आज ही असम्बली की जो फहरिस्त तैयार हुई इसमें इतने वोट कम कैसे हो गए। हुकूमत को इसका जवाब देना चाहिए। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार अब राज्यसभा के रुकन बन गए और वो जल्द ही बिहार के वजीर आला ओहदे से इस्तीफा दे रहे हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार का सामान वजीर आला रिहाइश से उनके नए पते पर मुंतकिल होना शुरू हो गया। नीतीश कुमार जब भी वजीर आला की रिहाइशगाह छोड़ते हैं तो 7 सर्कुलर रोड में ही क़याम करते हैं। गुज़िश्ता कई दिनों से ये बहस तेज थी कि वो वजीर आला की रिहाइशगाह छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे। ताज़ा खबरों के मुताबिक इस्तीफे से कबल ही वजीर आला की रिहाइशगाह खाली होना शुरू हो गई। नीतीश कुमार की सरकारी रिहाइशगाह से उनका सामान 7 सर्कुलर रोड मुंतकिल किया जा रहा, जहां वो इस्तीफा के बाद रहेंगे। वजीर आला नीतीश कुमार का सामान आने मार्ग से 7 सर्कुलर रोड मुंतकिल किए जाने की वीडियोस सामने आई है।
यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने एक बयान में कहा है कि ईरान जंग के दौरान यूक्रेनी फौज ने मगरबी एशिया के कई ममालिक में ईरानी डिजाइन के शाहिद ड्रोन्स को मार गिराया। उन्होंने मजीद कहा है कि ये मुहिम एक वसी हिकमत अमली का हिस्सा जिसके तहत यूक्रेन अपने इत्तेहादी ममालिक को इन असलाहों से निमटने में मदद दे रहा जिन्हें रूस उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा। यूक्रेनी सदर ने उन कार्रवाइयों का एतराफ पहली बार अवामी तौर पर किया जिन्हें जाहिर नहीं किया गया था। उन्होंने कहा है कि यूक्रेनी अफवाज ने मुल्क में तैयार और जंग में आजमाए गए इंटरसेप्टर ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए बैरून मुल्क फाल मुहिमों में हिस्सा लिया। ये इंटरसेप्टर ड्रोन यूक्रेन में रूस के इस्तेमाल करदा ईरान साख्ता ड्रोन का मुकाबला करने में मुयस्सर साबित हुए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।